Okay, so I see, suppose I've got an employee's name like this. Okay, so what do you think, guys? What is the mistake? Is there anything wrong you're finding? So these are not in a proper format. Okay, okay. I mean the so generally, the first character of the your first name or mid name or last name should be capital, right? Yes or no? Ideally, whenever Yes, we write, so first character of the first character should be capital. Okay, so each word's first letter should be capital. Okay, so now in SQL we have learned so many functions. Here we also have a function called upper. Okay, so you can write upper, start the bracket, give the cell reference, enter. Now what it is doing is it will convert everything to uppercase, right? yes, sir. Okay. Okay, so we also have a function called lower, right? So what I can do is I can write lower, start the bracket, give the cell reference, it will convert in lowercase, right? Correct. So these are the functions. These are the text functions in Excel. Okay. So we also have upper, lower. Then we also have a function called proper. So what proper function will do is it will capitalize each word's first letter. Each word's first letter it will capitalize. A capital करेगा और K capital करेगा. यहाँ पे P, यहाँ पे P, D, K. Okay. So what I'll do is I'll write proper. Provide the cell reference. देखो यहाँ पे बराबर आ गया. Got it? Yes, sir. Yes. Okay, understood what is the use of upper, lower, proper. Upper क्या करता है अपर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर क्या करता है लोअर केस में, प्रॉपर क्या करेगा प्रॉपर केस, which means each word's first letter will be capitalized. Correct? Yes. Okay. So now, if sometimes whenever you type in something, suppose you got Google form to fill in some details. Okay. So what you can do is knowingly or unknowingly, you might enter space or you might use spaces, special characters. Okay. So suppose there is a space. Okay. Let's say, I'll write well. Okay, there is a space. Okay, then I'll write Amitosh. I'll write Tattva. Okay, so there are spaces before this. Maybe there may be space before or after the. Okay, there may be space before or after the text. You need to remove the spaces. Okay, this is also as part of data cleaning. You will have to remove the spaces before and after. So what I can do is I can write trim. पहले trim लिखूंगा और ये इसका रेफरेंस दे दूंगा. Enter. Okay. उसके बाद ट्रिम के बाद मुझे क्या करना है फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है. गॉट इट. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा PROPER ब्रैकेट स्टार्ट करो, ये एंड करो. आ रहा है समझ में सबको? Yes. पहले ट्रिम चलेगा. ट्रिम क्या करेगा पहले स्पेसेस को रिमूव करेगा फ्रॉम बोथ द साइड. प्रॉपर क्या करेगा उसको फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा. खत्म. गॉट इट. आया समझ में फंक्शन? Yes. Okay, so tell me, so this is we have used trim function over here. So let's say we have January. Okay, so this is called fill handle. जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, 1 2 आप लिखो, सिलेक्ट करो. आपको अगर पूरा सीरीज चाहिए ऐसे, ये फिल हैंडल को क्लिक करो और ड्रैग करो. ठीक है, ऐसे कर सकते हो. वैसे मैं लिखूंगा जनवरी. इफ यू जस्ट क्लिक हियर एंड ड्रैग. करेक्ट. So what is the use of left function, guys? Do you remember in SQL? Sir, it extract the characters from left side. Correct. It will extract the specified number of characters from the left side. So equals to left, pass the text, B14 that contains the text. How many characters I want? I want 3 characters. Okay. Enter. Okay. आ गया January.
सो ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि सपोज इन सम ऑफ द एप्लीकेशन वी माइट हैव टू पास द डेट, ओके, मंथ इन शॉर्ट फॉर्म, ओके, जैन फेब मार्च, ओके। कभी कभार अपने को जब डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे हम लोग, ये लंबा नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड में बहुत लिमिटेड ईयर रहता है, कैनवास का एक एरिया रहता है, उसी के अंदर आपको सब कुछ दिखाना रहेगा, राइट। सो इफ यू जस्ट यूज वेरी लॉन्ग नेम्स ऑफ मंथ, देन it will be not looking good, and the image or the chart itself will take lot of, it will occupy a lot of space, okay। so इसीलिए कभी कभार हम लोग शॉर्ट मंथ नेम भी यूज करते हैं, कोई कोई एप्लीकेशन में भी अपने को शॉर्ट मंथ नेम के हिसाब से डेट को पास करना रहता है। सो लेफ्ट अंडरस्टूड एवरीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ लेफ्ट फंक्शन, okay। so similarly we also have right function, right, okay। suppose I want 3 characters from the right side, got it। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर आपको एसक्यूएल में फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया, देन so it will be easy, or it will be vanilla for you when you learn Excel, Power BI, and Python also, because same set of functions we are going to use everywhere, almost 50% similar functions you will find in this, जो text functions हमने पढ़ा था वहां पे। so here you will have at least 50% function यहाँ पे रहेगा। Power BI में भी exactly same, when you learn a concept called DAX, so DAX में आपको काफी सारे functions X से, it will be similar to Excel। so clear, ये आया समझ में, लेफ्ट राइट, Yes, sir. okay। then okay, we'll learn a function। so guys, do you remember there is a function called a substring in SQL? क्या करता है ये? Sir, it extract a string from a main string. हम्म, Sir, it extract a string from a main string. यस, ये मेन स्ट्रिंग से क्या करता है, एक स्ट्रिंग निकाल के आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग। सपोज मुझे कुमार निकालना है आशीष कुमार से, तो आई कैन यूज इधर राइट फंक्शन, और इन एसक्यूएल आई कैन यूज सबस्ट्रिंग फंक्शन। तो एसक्यूएल में आपको पता है सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे हम लोग देते थे, वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू पास द टेक्स्ट, उसके बाद कहाँ से चालू करना है, स्टार्टिंग पोजिशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। डू यू गाइस रिमेंबर दिस? Yes, sir. अनुराधा, भक्त, कोयल, you all remember the use of sub? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay। So, so now, so how to use here? We do not have in Excel. We do not have substring function. There is a function called. It's very similar to substring, which is called what, guys? Mid. Mid function. Okay, there is the function name is it mid function। So mid में आपको करना क्या पड़ेगा? You have to pass the text. Text means I mean the cell reference। यहाँ पे वो text है, ठीक है। So मुझे कहाँ से start करना है? Okay, I want to start from where I want, because I want to extract Kumar। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, स्पेस हो गया 7, ये हो गया 8। सो 8 से चालू करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट इज 5, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट 5 कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट वन इज, ओके, सो फर्स्ट वन इज text from where you start, which is 8, and how many characters you want, which is 5, okay। Close the bracket, enter, you got Kumar, right? Understood everyone? Yes, sir. Okay, so I'm going little fast here because you already know the substring function, okay। Here it is, we do not have substring, we have mid, which is very similar to, almost same as substring, the name is different, okay, substring। so ऐसे आप कर सकते हो। और सब्स्टिट्यूट करके एक फंक्शन है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, okay। suppose I want to substitute, मुझे क्या करना है यहाँ पे, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, ओके। सब्स्टिट्यूट में करना क्या है, ओके, दिस इज माई टेक्स्ट, मुझे प्रसाद को रिप्लेस करना है विथ कुमार, ओके। सो सब्स्टिट्यूट फंक्शन कैसे चलता है, फर्स्ट है आपका ओल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट में रहे भक्त प्रसाद, ओके। नाउ सॉरी, टेक्स्ट मेन टेक्स्ट है भक्त प्रसाद, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मुझे प्रसाद को रिप्लेस करना है विथ कुमार। सो ओल्ड टेक्स्ट इज प्रसाद, न्यू टेक्स्ट इज कुमार। सो सिंस these are text values or string values, I have enclosed it within double quotes। now substitute is similar to replace function, okay। substitute is similar to a replace function, okay। bracket close करो, enter, what is it,
old text, new text. Okay, I think this is case sensitive, I guess. Prasad, Kumar. Okay, enter. Got it. This is case sensitive. आया समझ में? Yes. ओके, सो मैंने प्रसाद को ढूंढा ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, प्रसाद को रिप्लेस किया कुमार के साथ, सो आउटपुट की चेक आउट है भक्त कुमार. एवरीवन अंडरस्टूड? तो सपोज आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम है सुनील कुमार प्रधान. ओके, सो फर्स्ट नेम इज सुनील. ओके, फर्स्ट नेम इज सुनील, मिड नेम इज कुमार, लास्ट नेम इज प्रधान. सपोज आपने डेटा ऐसे कैप्चर किया है, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट व्हेन एवर यू वांट टू प्रेजेंट इट इन अ रिपोर्ट, you need to show the full name. So full name कैसे करूँ मैं? कौन बताएगा मुझे? In Excel, how can you join multiple texts or strings? So ये करो, यहाँ पे ampersand लगता है, and कुमार and प्रधान, ऐसे आप कर सकते हो. सुनील कुमार प्रधान. So A35 and B35 and C35. So press enter, you got it. So क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे guys? What is the problem over here? No space after this. Right? स्पेस नहीं है, राइट? सो क्या करना है अभी? मुझे ये जो एंड आपने लिखा है ना, मुझे स्पेस, एक स्पेस दे दो डबल कोट्स में. ओके, फिर एंड लिखो. मतलब आप क्या कर रहे हो? A35, उसके बाद स्पेस, उसके बाद B35, B35 के बाद एंड दे दो, स्पेस, ओके, और एक एंड दे दो. ठीक है, A35 उसके साथ A35 को स्पेस के साथ ज्वाइन करा रहे हो, फिर उसके साथ B35 के वैल्यू को ज्वाइन करा रहे हो, देन स्पेस, देन C35. एक एक स्ट्रिंग को जब आप कनेक्ट करोगे ना, so you should be using and operator. I mean this is ampersand. Ampersand is used to join the strings also here in Excel. So clear everyone? Tattva, Sagar, Harchisman. Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ में, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी नो इन एसक्यूएल. बताओ एसक्यूएल सर्वर में ऐसा कैसे करते थे? याद है किसी को? Code connect. नहीं, ये इसके बदले क्या यूज करते थे? ये एंड के बदले क्या यूज करते थे? Plus. प्लस. एक्सलेंट, प्लस यूज करते थे. देखो हमें तो उसको याद है. ओके, गॉट इट. सो ठीक है, तो देर इज ऑल्सो, वी ऑल्सो हैव वन मोर फंक्शन. We also have one more function to concatenate this. कैसे? I think I'll write full name here again. Full name. चलो कैसे करेंगे? Equals to concat. Okay. क्या करना है concat में? So concat will take multiple strings to join. Okay. Concat क्या करता है? Multiple string लेके join करता है. तो मैंने पास कर दिया इसका रेफरेंस, कॉमा दे दो. देखो ये फंक्शन कैसा है, इस text 1 के बाद कॉमा दिख रहा है आपको, कॉमा text 2, कॉमा text 3, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर. ओके, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं दिख रहा, स्पेस नहीं है. तो मुझे क्या करना है? A37 को पास करना है, जो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है, दिस इज अ स्पेस. B37 को पास करना है, देन जो नेक्स्ट पैरामीटर है स्पेस, उसके बाद है कौन. सो नाउ इट हैज टेकन हाउ मेनी पैरामीटर्स? 1 2 3 4 5. सो फर्स्ट इज A30 सुनील, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद कुमार, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद प्रधान. Okay, so concat function will take multiple parameters and it will join them, join all the strings. But यहाँ पे मैं जब join करा रहा हूँ और concat कर रहा हूँ, तो the problem which I'm facing is it is not adding a space between first name, mid name and last name. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? वैसे ही एक space add करना है. ठीक है, clear? Got it? सबको clear है ये? तो हमने concat function first name, full name using ampersand, यहाँ पे full name using concat function. Okay, clear to everyone? Yes, sir. Okay, so now और एक तरीका देखते हैं to join this. क्या तरीका है? There is a function called text join.
ओके, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टेक्स्ट जॉइन. सो टेक्स्ट जॉइन में क्या करना क्या है मुझे, टेक्स्ट जॉइन में डिलीमीटर देना है. सो डिलीमीटर मतलब क्या, जब आप एक ये दिस इज कॉल्ड डिलीमीटर. जैसे मैं एक डेट को ज्वाइन करता हूँ, मतलब डेट लिखता हूँ 12/03/22, इट्स अ डिलीमीटर. डॉट को डिलीमीटर बोलते हैं, हाइफेन को डिलीमीटर बोलते हैं. सो डिलीमीटर यूज करके हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, व्हेन यू राइट टेक्स्ट ज्वाइन करके फंक्शन, व्हेन यू राइट टेक्स्ट ज्वाइन, ओके, सो फर्स्ट वन इज डिलीमीटर. आप जब ज्वाइन करोगे देन व्हाट डू यू वांट, ओके, सो ज्वाइन करोगे तो कौन सा डिलीमीटर यूज करके ज्वाइन करोगे. मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज, अनुराधा, may I know your surname? Sir, it's Das, DS. Yes, great. Okay. ओके, सो अभी मुझे मुझे क्या करना है, जैसे अमितोष कुमार में लिख देता हूँ, अमितोष कुमार पंडा. ओके, सो नाउ देखो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन कैसे काम करता है. टेक्स्ट जॉइन, ओके, टेक्स्ट जॉइन. सो डिलीमीटर क्या यूज करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस यूज करूंगा. डिलीमीटर स्पेस यूज करके, सो ट्रू, इसका मतलब क्या है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स. सो अगर कहीं पे इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या है, अगर एम्प्टी सेल रहेगा, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो क्या, कनेक्ट मतलब कॉन्केटिनेट करना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो. मैं बोला नहीं, इग्नोर एम्प्टी सेल्स. ठीक है, मुझे इग्नोर करना है, मुझे ज्वाइन नहीं करना है. मतलब यहाँ पे सुनील कुमार प्रधान है, मैं ज्वाइन करूंगा तीनों को. ठीक है, यहाँ पे कोयल करिश्मा, कोयल डजंट हैव ए मिडिल नेम, so I'll not be joining three. I'll only join this first name and last name. Here we have Anuradha and Das. I'll be joining first name and last name. Okay, so what I can do is I can always ignore the empty cells. So true means ignoring the empty cells. मैं बताऊंगा अगर नहीं इग्नोर करोगे तो क्या डिफरेंस है रहेगा. सो टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री ऐसे पास कर सकते हो. ठीक है, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री ऐसे करके इंडिविजुअली पास कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज द सेल रेफरेंस, जहाँ पे यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू को कॉमा दे दे के दे सकते हो. जैसे कि A39 हो गया, कॉमा B39, कॉमा C39. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज अ सेल रेफरेंस. ओके, सो एंटर आ गया, ज्वाइन हो गया तीनों स्ट्रिंग, चारों फुल नेम आ गया. ओके, सो अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एक स्पेस है अभी. कोयल स्पेस करिश्मा, अनुराधा स्पेस दास. सो नाउ द थिंग इज दैट इफ आई, ओके, सो इफ आई यूज, यहाँ पे देखो मैं अगर बोलूंगा कि एम्प्टी सेल्स को इग्नोर मत करो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉल्स. ओके, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स कर दूंगा. ठीक है, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स में यहाँ पे कर दूंगा. ओके, इग्नोर एम्प्टी सेल्स. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये सबको इंक्लूड करेगा, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्पेस एक देख पा रहे हो, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट वैल्यूज. आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स्ट्रा स्पेस एक, ये दोनों स्पेस है. ठीक है, देख पा रहे हो, यस और नो. देखो एक Yes, स्पेस sir. है, दो स्पेस है, एक है, दो है. तो जब इसने एम्प्टी वाला सेल का वैल्यू उठाया, उसको भी स्पेस देके कॉन्केटिनेट किया. इसलिए मैं इसलिए स्टार्टिंग में लिखा था कि इग्नोर एम्प्टी सेल्स, मुझे एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है. गॉट इट. ऑल राइट, सो आपको इग्नोर करना है हमेशा. आप जब ज्वाइन करोगे ना, यू कैन इग्नोर इट. यहाँ पे ट्रू लिख दो, ट्रू मतलब इग्नोर एम्प्टी सेल्स. एंटर, अभी बराबर आ गया. Okay, so there is another function we will learn is find function. So find function is equal to समितोष बोलो ये क्या करता है. It will find the index of the specific number, specific text, specific character. कैर इंडेक्स एसक्यूएल में क्या करता था, अगर अगर दिलीप कुमार में मुझे कुमार ढूंढना है तो के का पोजीशन देता था, राइट, काउंट करके, राइट.
So suppose in Anuradha I have to find out Radha, then definitely it will return me 4 because Radha is starting from 4th character, right? Got it? Char index याद है हमने पढ़ा था SQL में? Yes. Okay, so यहाँ पे we do not have the char index function straight away. We have a function that is find. Okay, so कैसे लिखते हैं find function? Find लिखो. Okay, क्या आपको ढूंढना है? Suppose I want to find out. Let's say I want to find out. Let's try this one. Equals to find. I want to find out. Let's say. Okay, this is the text which I want to find out in A49. A49 contains Anuradha. Now I want to find out whether Radha is there or not. Okay, so bracket close karo, enter. So it is finding. I want to find out. Okay, let's say find Ashish. Okay. Got it? So you're able to find Ashish within Ashish Kumar. So यही सब करता है, ठीक है? Got it? कैसे काम किया? Yes, sir. फाइंड फंक्शन में क्या फाइंड करना है और कहाँ किस में फाइंड करना है. गॉट इट? मतलब आपका जो मेन टेक्स्ट है, दिस इज दी सब स्ट्रिंग, दिस इज मेन स्ट्रिंग. सो मेन स्ट्रिंग में आप सब स्ट्रिंग को ढूंढ रहे हो. अगर आपको मिलता है देन यू विल बी गेटिंग द इंडेक्स, मतलब पोजीशन आपको मिलेगा. जब अगर मैं लिख दूंगा कि अर्पित, आई विल बी गेटिंग वैल्यू एरर. मुझे अगर नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन मुझे वैल्यू एरर फाइंड करके देगा. अगर मिलेगा तो आई विल बी गेटिंग द पोजीशन ऑफ आशीष. इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ऑब्वियसली मैं ढूंढ रहा हूँ, डेफिनेटली वो इंडेक्स 1 से चालू हो रहा है, तो जहां पे मिलेगा मुझे वो इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. राइट? Yes, sir. ओके, सो नाउ चलो, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस. सो व्हाई एम आई गेटिंग वैल्यू एरर? आशीष इज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट? Ashish is already present and spelling is also correct. Oh, sorry. SHISH. Okay, still I'm getting the value error. Because Excel is This case is case sensitive. sensitive, sir. Yes. This find function in Excel is a case sensitive function. Okay. This find function in Excel is a case sensitive function. Okay. आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो? आपको अगर लग रहा है, चलो आपके पास यही फंक्शन है, तो आप कोई मुझे बता सकता है देन हाउ कैन आई यूज दिस फंक्शन? Sir, we can add a lower function to it. यस यस. आप यहाँ पे अगर इसको कैपिटल में ढूंढ रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे अपर कर दो. ठीक है, अगर मैं कैपिटल में ढूंढ रहा हूँ मैं अपर कर दूंगा, खत्म, आ जाएगा, 1 मिल गया. अगर मैं लोअर में ढूंढ रहा हूँ, आई एम श्योर दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट द केस, ओके, विच द टेक्स्ट विल हैव. मतलब टेक्स्ट में कौन सा केस रहेगा मुझे पता नहीं है. ठीक है, टेक्स्ट माइट हैव अपर केस, टेक्स्ट माइट हैव लोअर केस, टेक्स्ट माइट हैव अ मिक्स्ड केस आल्सो, अपर लोअर, जैसे यहाँ पे जो है अनुराधा के केस में, आर्चिस मंथ के केस में. नाउ दिस टेक्स्ट हैज मिक्स्ड, अपर एंड लोअर दोनों मिक्स है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो क्या करना है फिर? अगर मेरे पास आई हैव ओनली दिस फंक्शन, देन हाउ टू हैंडल दिस? तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आशीष स्मॉल में ढूंढ रहा हूँ, आई एम जस्ट आई हैव जस्ट रिटन हियर इन लोअर केस, तो मैं इसको ही लोअर कर दूंगा. पहले लोअर कर लो, मतलब पहले A46 में जो वैल्यू है उसको लोअर में कन्वर्ट करो, स्मॉल लेटर में, उसके बाद ही ढूंढो तो आपको मिलेगा. क्या ये समझ रहे हो? आप लोग फॉलो कर पा रहे हो? Yes, sir. सागर? Yes, sir. ओके, भक्त? ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको ना लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा. A46 में जो वैल्यू है, ठीक है, सपोज ये मिक्स्ड केस रहता था, ठीक है, मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा. लोअर के बाद अगर मैं आशीष ढूंढ रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल गेट इट. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको अपर कर रहा हूँ, अपर करके सर्च करूंगा तो आई विल बी गेटिंग वैल्यू एरर, क्योंकि ये A46 को अपर कर दिया, लेकिन अपर केस जो जो टेक्स्ट है अपर केस में मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें आशीष इन स्मॉलर केस, आई मीन इन लोअर केस. सो डेफिनेटली आशीष नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इट टू अपर केस. मैं अगर यहाँ पे अपर करने के बाद कैपिटल आशीष ढूंढूंगा, सो डेफिनेटली आई विल गेट द आंसर, आई विल गेट द इंडेक्स, सॉरी. ठीक है, गॉट इट, एंटर, गॉट द आंसर.
Clear? Yes, sir. Okay, so find. But okay, so we have another function which is called search. So this function, find function क्या है? It is a case sensitive function and this is case, ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप कोई भी केस में सर्च करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज गोइंग टू गिव यू द आउटपुट. सर्च, ओके, सॉरी, इक्वल्स टू सर्च. मैं क्या सर्च करूंगा? लेट्स से कुमार सर्च कर रहा हूँ, KUMAR. ओके, ये मिक्स केस में है, मेरे पास जो टेक्स्ट है लोअर केस में है, राइट? यस और नो? मैं मिक्स केस सर वाला सर्च का स्पेलिंग. सर्च का स्पेलिंग है ARCH. यस. Okay, so the text which I'm trying to find in the main text or main string, that is in the mixed case, upper and lower. Okay, now so here I have the text which is in lower case. Okay, chalo enter. I output. That means find function which actually finds the position, finds the text, I mean substring in the main string and returns you the position. It is a case sensitive function. This is not a case sensitive function, which is a case insensitive. आप कैसे भी ढूंढो, smaller case, I mean lower case, upper case, mixed case, it is still going to give you the position if it finds. Clear? Yes, sir. Okay. ये सब फंक्शंस पता था guys आपको? आप लोगों को पता था all these functions, search, find? No, sir. ओके, ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है. डेटा क्लीनिंग हो गया, टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गया. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स से आई हैव समथिंग कॉल्ड टिकट बुक्ड. Okay, so suppose I have this. Okay, booking failed. This is status. This is टिकट बुक हुआ कि नहीं. सो मुझे ना सिंपली चाहिए यहाँ पे yes no, यहाँ पे yes no चाहिए. सो मुझे क्या करना है यहाँ पे? इक्वल्स टू फाइंड फंक्शन यूज करो. फाइंड फंक्शन, ओके, फाइंड फंक्शन में मुझे ढूंढना है SUCCS, सक्सेस. इसमें से ढूंढना है. अगर सक्सेस मिला तो टिकट बुक हुआ. ठीक है, सक्सेस अगर मिला ये टेक्स्ट में, बुक, टिकट बुक हुआ. सो जहां जहां पे सक्सेस नहीं मिला मुझे वैल्यू एरर मिला, राइट? यस और नो? इसका मतलब यहाँ पे टिकट बुक नहीं हुआ है, करेक्ट? यस और नो? Yes. ओके, सो नाउ यहाँ पे टिकट बुक हुआ है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ग्रेटर देन 0 है टिकट इज बुक्ड. सो बट कस्टमर को और या एंड यूजर को आप वैल्यू एरर नहीं दिखाओगे. यू हैव टू हैंडल दिस एरर. ओके, सो यहाँ पे एक इफ एरर करके एक फंक्शन है. तो मतलब इफ इफ एरर करके एक फंक्शन है. सो इफ एरर फंक्शन क्या करता है? देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ERROR, इफ एरर. ये बताऊंगा मैं बाद में फिर से. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. ओके, इफ एरर फंक्शन. ओके, इफ एरर फंक्शन मतलब अगर एरर देता है यहाँ पे, इफ एरर फंक्शन क्या करता है? इन केस इफ इट फाइंड्स एरर, तो मुझे क्या करना है? एरर जहाँ पे वहां पे 0 कर दो. एरर नहीं है तो सेम वैल्यू आएगा. एरर जहाँ पे थ्रो करेगा तब 0 कर दो. आगे 0. तो अभी मुझे एक कंडीशन लिखने के लिए इजी होगा. मैं लिखूंगा कि अगर इफ इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. ओके, इफ कंडीशन में बताऊंगा आपको, आप लोगों को बताऊंगा. जस्ट यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ एरर फिर से मैं बताऊंगा एक सेशन में लेके. इफ B54 ग्रेटर देन 0, आपको क्या करना है? यस, टिकट बुक्ड, नहीं तो नो. ओके,
सो जहां जहां पे टिकट बुक हुआ है दैट इज एस, या जहां जहां पे बुक नहीं हुआ है दैट इज यू विल गेट नो। सो राइट क्लिक करो, कॉपी पेस्ट वैल्यूज, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो ये फंक्शन को भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं ये सब बताऊंगा बाद में। ये इफ, अगर इफ ग्रेटर देन 0, यस कॉमन, इफ ये सब मैं बाद में बताऊंगा, इफ को कैसे यूज करते हैं, इफ एरर क्या होता है, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ठीक है, इसका एक मतलब एक सिनेरियो जो है हमको ऐसे करना था, तो आपको यस नो कैसे करोगे, पहले आपको सक्सेस ढूंढना पड़ेगा, सक्सेस मिला तो यस करो। तो सक्सेस मिला कैसे पता चलेगा, सक्सेस मिलेगा तो ये ग्रेटर देन 0 नंबर इशू मतलब रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिला तो वैल्यू एरर। सो वैल्यू एरर को पहले हैंडल करो। वैल्यू एरर यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप लोग, मैंने पहले क्या किया, पहले सक्सेस को ढूंढा, सक्सेस को ढूंढने के बाद अगर एरर थ्रो करेगा तो इफ एरर यूज करके एरर थ्रो करेगा तो 0 प्लेस कर देना है यहाँ पे। एरर नहीं करे, एरर थ्रो नहीं करेगा तो सेम वैल्यू रखना। फिर मैं वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो टिकट बुक हुआ है, क्योंकि सक्सेस मिल रहा है यहाँ पे। इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 0 और इफ इट इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स टिकट इज नॉट बुक्ड। यस नो करके मैंने इफ के थ्रू